Hello guys, welcome to my YouTube channel IT Concepts, and today I have taken a video for class 12th. Class 12th IP के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, right? That is regarding Pandas data frame. As you can see my screen. So today my topic of discussions are rename, column name and row name, right? And after that we will discuss about head and tail function in data frame. After that Boolean indexing, ये भी एक अच्छा concept है. Data frame attributes and import export data from CSV file. So we will discuss these topics in this further video, right? So I shall start now. One more thing, I have already uploaded the previous video. If you have not gone through the basics of data frame, I just suggest you just go through my previous video, right? आप पहले वाली वीडियोस देख लें. प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास मिल जाएगा आपको इसी डिस्क्रिप्शन में. You can go through all the videos for all the concepts, right? So my first thing is you have to rename the column label, right? I have to rename the column label, then I have to rename the row label, right? Before this, I just want to explain you through this practical, right? Spider on करते हैं हम एक प्रोग्राम के थ्रू आपको इसे explain करते हैं. You can see my program. I have created a data frame, right? You can see indexes are A, B, and columns are X, Y, Z. I just print this data frame, print DF. कैसे हमें रीनेमिंग करना है दैट आई विल एक्सप्लेन यू सी हियर. रो इंडेक्सेस कौन से हैं ए एंड बी एंड कॉलम नेम्स आर एक्स वाई एंड जेड, राइट? आई हैव टू रीनेम. हाउ आई विल रीनेम? डीएफ डॉट रीनेम. एग्जैक्टली रीनेम के बाद बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्चुअली रीनेम आइदर कॉलम और रोज, आइदर कॉलम और रोज. तो उसके लिए आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करना है. वी नो दैट डिक्शनरी कैसे क्रिएट होता है आपका. That is your curly braces, right? Now you have to mention the old column name. अभी मेरा कॉलम रोज नेम क्या है? अभी मैं रोज की बात करता हूँ, राइट? ए. सपोज ए को मैं रीनेम करने वाला हूँ आई थिंक डबल ए, राइट? एंड सेकेंड कॉलम इज बी. आई हैव टू रीनेम विथ डबल बी. ओके, नाउ वी हैव टू मेंशन दैट इज इंडेक्स. अच्छा, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. इंडेक्स 0, इंडेक्स 1. अगर आप डेटा फ्रेम में एंट्री करते हैं पहले रो आने वाला, दैट मींस इंडेक्स रो किसके लिए होगा? इंडेक्स 0 दैट इज फॉर रोज एंड इंडेक्स 1 दैट इज फॉर कॉलम. वी नो दैट्स राइट. So df dot rename. Okay, we just print df, right? Yes, I'm going to print this. Yes, see, yes, you can see this, right? So what we have did is x is equals to 0. Previously there is a mistake that I have mentioned index equals to 0. It should be x, right? X is equals to 0. So now you can see a should be replaced by double a and b should be replaced by double b. But now there is a problem. You can see it is not replaced. A still index are a and b. पहले भी a और b थे, अभी a और b है. Although we have applied the rename, actually the thing is जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया बट चेंजेस नहीं हुआ डेटा फ्रेम में, तो देयर इज वन थिंग दैट इज यू हैव टू राइट इन प्लेस प्रॉपर्टी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू many times you will use this property, right? We have to write in place equals to true because change तो हो गया बट ट्रू कॉपी में उसके चेंजेस नहीं हुआ. तो ट्रू कॉपी में चेंजेस करने के लिए you have to write in place equals to true. Now you can see a is replaced by double a and b is replaced by double b. This is how you can replace or rename the रो इंडेक्स, राइट? अगर आपको कॉलम इंडेक्स रीनेम करना है, व्हाट यू विल डू? df डॉट रीनेम. एग्जैक्टली अगेन आई हैव टू क्रिएट द डिक्शनरी. columns are x. Okay, x will be replaced. Suppose first column is x. Okay, x should be replaced by, suppose I will replace it by p. Second is y and y should be replaced by q, and third one is z and z should be replaced by r. Exactly, right? And next is x is equals to कॉलम है, that is column. Column should be x is equals to 1 comma in place equals to true, right? This is how you can do this, right? Print df I will do. You can see this. See pqr. Previously the column row labels was xyz. Now row labels are pqr. So I have renamed the column as well as row. अगर row को आपको rename करना है, dictionary you have to create in dictionary old column name, old index, then new index. For row I have to mention x is equals to 0 and for column I have to mention x is equals to 1 because हमें original copy में change करना है, so we have to put in place equals to true. This is the most important, right? So this is our first topic of today's first topic, that is renaming column name, column label or row label, etc. Right? I hope you are able to understand. This is the thing I have explained here. See, df dot rename. Arnab is replaced by student 1.
Ramit is replaced by student 2 and Samriddhi is replaced by student 3. I have written x is equals to 1. That means I am working on columns, right? Here I have already mentioned column level, right? Next is your row level. Maths is replaced by subject 1, science is replaced by subject 2, English is replaced by subject 3, Hindi is replaced by subject 4, x is equals to 4. That means we are going to rename the row. So remember x is equals to 0 for rows and x equals to 1 for columns. That is the most important. This is for x is equals to 0 and this is x is equals to 1, right? Okay. Now the second topic is head and tail function. See, what is the use of head and tail function? Either top rows or bottom rows, right? I'm just going to explain you through the program again. We will the most important thing, we are going to do all the things through programs only. I will explain everything through practical manner. This is the main thing, right? See, if I write print df dot head and suppose I am writing 1, right? It will print the top row. See, you can see top row, it get printed. There are two rows, it will get the top row, right? If I write print df dot tail, here also I have to root 1 or 2 or 3 because sometimes many people are writing -1. माइनस में नहीं लिखना, आपका जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज पॉजिटिव ओनली, चाहे आप हेड यूज कर रहे हैं चाहे टेल, राइट? तो टेल आप करते हैं लास्ट टू, तो लास्ट टू दैट मीन्स लास्ट वन करेंगे तो लास्ट वन हो जाएगा, तो दैट मीन्स लास्ट रो गेट प्रिंटेड, राइट? तो दिस इज कॉल्ड हेड एंड टेल. हेड मीन्स टॉप रो एंड टेल मीन्स बॉटम रो, राइट? अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग एनी 1 2 3, दैट विल प्रिंट बाय डिफॉल्ट 5 rows. Default is 5 rows, same as series, right? That I have already explained in series on, right? Okay, next. Yes, next is Boolean indexing. It is also important topic in this. So what is Boolean indexing? What is the Boolean? We know that Boolean means two values, that is true or false. Boolean means true or, we have already discussed this thing. This is the basic thing actually, right? So that means now I am providing the indexing that is true or false. See, here I am creating a data frame, name, dictionary and score. These are the three columns. These are the value Mohan, Freya, Roshni, MB, NC, right? So these are the three columns, name, degree and score, right? Okay. Now indexes, what I have mentioned is true, false, true. So now index is true, false or true. So what is the use of Boolean indexing? Actually हम Boolean indexing क्यों यूज कर रहे हैं? Suppose there are lots of data, right? कुछ इधर एक ट्रू को मैंने मेंशन कर दिया फॉर बॉयज डेटा एंड फॉल्स मेंशन कर दिया गर्ल्स डेटा. आई नीड नॉट टू मेंशन एनी क्राइटेरिया, जस्ट आई विल राइट df डॉट लॉग ट्रू, तो दैट मींस सारी बॉयज का डेटा आ जाएगा क्लास का, और df डॉट लॉग फॉल्स, तो दैट मींस गर्ल्स का डेटा आ जाएगा, राइट? तो ट्रू फॉल्स हम इंडेक्सिंग इसलिए दे रहे हैं बुलियन में, दैट मींस आई एम डिवाइडिंग द होल डेटा इनटू टू इंडेक्स, आइदर ट्रू और फॉल्स. एक एग्जांपल लिया मैंने कि बॉयज को मैं ट्रू से रिप्रेजेंट कर देता हूं और गर्ल्स को फॉल्स से, तो आई हैव टू राइट सी, इसके अंदर लास्ट में लिखा है df डॉट लॉग ट्रू, तो जितने भी ट्रू के रिलेटेड डेटा है दैट मींस बॉयज के रिलेटेड डेटा है वो आ जाएगा, और जब हम लोग बात करेंगे df डॉट लॉग फॉल्स, तो दैट मींस इट विल वर्क ऑन गर्ल्स डेटा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड बुलियन इंडेक्सिंग. दैट मींस अभी तक जो हम इंडेक्सिंग दे रहे थे लेवल इंडेक्सिंग, नाउ वी विल प्रोवाइड द इंडेक्सिंग थ्रू Boolean values. The Boolean values either true or false. And important, it should not be in single code. ये single code नहीं है, string नहीं है, ये true false values हैं, that is index value. तो जो true values हैं वो true print कर देंगे and false will print the false value. I hope you are able to understand. See, I'm just again explaining through a program. See, yes, index equals to one more row. I'm just going to insert, right? Suppose one more row is there 7, 8 and 9, right? And indexes are A, B, C की जगह मैं इंडेक्स कर दे रहा हूँ ट्रू. सी मैंने अब वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सिंगल कोड्स, डबल कोड्स. यस, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, दीज आर द थ्री इंडेक्सेस. ये तीनों कौन से इंडेक्सेस हैं आपके? बुलियन इंडेक्स में, राइट? व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस, सी दिस इज द दिस गॉट प्रिंट. नाउ यू कैन सी ट्रू, फॉल्स, ट्रू, दे आर थ्री इंडेक्सेस, राइट? इफ आई राइट print df dot lock loc and if I write true, what will happen? It will print the rows with true indexes. तो that means मेरा जो भी डेटा है, अगर लास्ट डेटा है मैंने उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रू इंडेक्स और एक
फॉल्स इंडेक्स। तो आई नीड नॉट टू मेंशन एनी कंडीशन। ट्रू मींस सपोज एक पर्टिकुलर डेटा है, बॉयज का डेटा है, तो ट्रू लिखते ही सारा बॉयज का डेटा देगा, एंड फॉल्स मींस ऑल गर्ल्स डेटा विल प्रिंट। तो दिस इज कॉल्ड बुलियन इंडेक्सिंग। दैट मींस पहले हम लेबल इंडेक्सिंग दे रहे थे ए बी सी, नाउ वी आर गिविंग द इंडेक्सिंग दैट इज ट्रू और फॉल्स। इससे फिल्ट्रेशन बहुत इजी हो जाता है। दिस इज द मेन टास्क ऑफ बुलियन इंडेक्सिंग, राइट? नेक्स्ट प्लीज। I hope you are able to understand this thing. Yes. Now the next topic is pandas data frame attributes, right? अभी हम लोग किस पे काम करने वाले हैं? Attributes पे। जैसे if you अगर आपने पहला मेरा कोई क्लास ज्वाइन किया है तो सीरीज में हमने attributes पे वर्क किया, राइट? Same attributes we are going to work on the actually your data frame, right? So see, so what are the attributes? कौन कौन से attributes हम लोग यूज करने वाले हैं? Are going to use this. Yes, now you can see this, please. Import pandas as pd, एक डेटा फ्रेम हम लोगों ने क्रिएट किया, that is 1 2 3 और these are the values. Now the attributes. Yes, first attribute is index. तो what it will do? It will print all the index. Index means row के labels print करने वाला, right? Second is columns. It will print all the columns. Axis, axis means how many axes are there? 2 axes are there. D types. This is see सीरीज में जब हम डेटा बात करते थे तो डी टाइप हुआ करता था। क्यों? बिकॉज एक ही कॉलम था, ओनली वन कॉलम इज देयर। या मल्टीपल कॉलम्स है तो मल्टीपल कॉलम्स की डेटा टाइप्स कैन बी डिफरेंट, राइट? तो इसलिए डी टाइप्स है, राइट? उसके बाद हम लोग बात करें साइज की। साइज की बात करें तो साइज में बात करेगा रो कॉमा कॉलम, राइट? उसके बाद सॉरी साइज में होगा नंबर ऑफ वैल्यूज। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 3 और 3 6। शेप विल प्रिंट द रो कॉमा कॉलम, 2 rows and 3 columns exactly. Values will print all the values. Empty will check if it is empty. Empty नहीं है तो false आ जाएगा, empty होगा तो it will be true, right? Next is your endim. Endim means number dimension, क्योंकि डेटा फ्रेम में सीरीज में हमेशा endim की वैल्यू 1 थी, यहाँ वैल्यू हमेशा 2 कितना रहेगा? 2. df.t, t means transpose. Transpose means रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम रो में। See, I am showing you all the outputs of here. Yes, see. First is your data frame. Data frame हमारा प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है? Now the next is your index. Index will print all the index A or B. Columns, column will print all the column index, that is X, Y और Z. Axis, axis में क्या होगा आपके पास? C, index और columns दोनों आ जाएंगे, row index as well as column index, right? D types, D types में क्या प्रिंट होगा? X में किस टाइप का डेटा? इंटीजर, तो इंटीजर 64। Y में फ्लोटिंग वैल्यू है तो फ्लोट 64। मैंने कहा ना एवरी कॉलम हैज डिफरेंट डेटा टाइप और डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है, इसलिए है आपका जो डेटा टाइप डेटा फ्रेम है दैट इज योर हेटेरोजेनस डेटा टाइप, राइट? ओके, नाउ साइज, साइज अगेन नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज 6। शेप रो कॉमा कॉलम, हाउ मेनी रोज आर देयर? 2 और कॉलम्स आर 3, तो 2 कॉमा 3 एक्जेक्टली। आफ्टर दैट values, it will print all the values. See, empty because this data frame is not empty, तो आउटपुट क्या आ गया? false. अगर empty होता तो empty है। endim will give you 2 because 2 dimensions है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट रो विल कन्वर्टेड टू कॉलम एंड कॉलम। पहले कितनी रोज थी? 2 rows and 3 columns, अभी कितना हो गया? 3 rows and 2 columns, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दीज ऑल आर डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई से कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और दीज एट्रीब्यूट्स आर यूज मेनी टाइम्स इन डेटा फ्रेम, बहुत बार आपको यूज होंगे, राइट? डेटा फ्रेम में, तो दीज ऑल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, राइट? Now the next topic, today's last topic, it is the most important topic, that is data frame and CSV file. What is CSV file? Why we are using CSV file? See, अभी तक आप लोगों ने प्रोग्राम क्रिएट किया। I have created a data frame that is DF. Okay, I have performed the operation. परफॉर्म करने के बाद जैसे ही मैंने प्रोग्राम बंद किया, डेटा फ्रेम got deleted. Now what I want, whatever operation, जो भी मैंने ऑपरेशन डेटा फ्रेम में परफॉर्म किया है, it should be stored in an external file. उसे किसी एक्सटर्नल फाइल में स्टोर करके रखना है, so we can retrieve it later on. जैसे हम बैकएंड कहते हैं, एक्चुअली बैकएंड में आप MySQL पे भी वर्क करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ CSV फाइल्स पे। सी व्हाट वी आर डूइंग, हमने पाइथन का प्रोग्राम बनाया, उसमें डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डेटा है, उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किया। अब वॉट एवर विद द लास्ट अपडेटेड वैल्यू, मैं उसे चाहता हूं कि वो एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट हो जाए, सो लेटर ऑन इट कैन बी इम्पोर्ट, ताकि हम उसको बाद में यूज कर सके, अपने प्रोग्राम में यूज कर सके। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड CSV। CSV एक तरीके से एज ए बैक एंड वर्क कर रहा है और डेटा फ्रेम एज अ फ्रंट एंड वर्क कर रहा है। आप फ्रंट एंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन यू विल सेव द डेटा इन योर बैक एंड, दैट इज योर CSV फाइल। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि डेटा फ्रेम और CSV फाइल में हम यही करने वाले कि व्हाट एवर बी द डेटा,
जो भी डेटा आपने पांडास डेटा फ्रेम में बनाया है, यू आर गोइंग टू सेव इनटू द सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल क्यों यूज किया? बिकॉज सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, जनरली एक्सेल्स में बनाते हैं या नोटपैड में बनाते हैं, और आपका जो भी डेटा हो टेबुलर फॉर्म है तो टेबुलर फॉर्म में वहां जाके सेव हो जाना है, वहां भी टेबुलर फॉर्मेट होता है, राइट। सी, transferring data between .csv file and data frame. Now what is CSV? CSV means comma separated value. ये जितनी भी वैल्यूज हैं, सपोज ये आपका एक यू कैन सी हियर टेबल रोल नंबर नेम, तो सारा डेटा किस में आ गया? कॉमा से सेपरेट हो रहा है, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा, तो रिकॉर्ड की फॉर्म में जा रहा है। 3 रिकॉर्ड्स हैं, ऑल रिकॉर्ड्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल कंसीडर टेबल सी, इफ यू आर स्टोरिंग द टेबल इन सीएसवी फॉर्मेट, ईच रो ऑफ द टेबल इज सी, यहाँ पे जो एक रो है वो यहाँ पे एक रो बन गया, सेकेंड रो बिकम सेकेंड रो एंड थर्ड रो बिकम द थर्ड रो, बट हर एक रो के अंदर जो वैल्यूज है दे आर सेपरेटेड थ्रू कॉमा। सेपरेटर आप चेंज भी कर सकते हैं, तो बिकॉज ये कॉमा सेपरेटेड है दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सीएसवी फाइल्स। तो नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसका डेटा स्टोर करने वाले सीएसवी फाइल में, और आफ्टर दैट सीएसवी फाइल से वो डेटा गेट करने वाले हैं इन द डेटा फ्रेम एग्जैक्टली। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कैसे करने वाले। बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक है, बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट्स, इवन इन द प्रोग्राम एग्जाम्स आल्सो इट विल बी आस्क्ड, राइट। ओके, सी, तो वी आर गोइंग अगेन, हम तो सारा काम प्रैक्टिकल करते हैं, राइट। वी आर गोइंग टू अगेन इम्प्लीमेंट दिस इन द प्रोग्राम। सी, now how you will import or export in the CSV file. I have created this data frame. Hope we already discussed this thing. This is the data frame, right? Now what we have to do is I have to export this. Again I am repeating, I am sorry. I have to export this data. ये जो भी डेटा है इसे मैं किसी CSV फाइल में स्टोर करना चाहता हूँ, एक्सटर्नल फाइल में, राइट। तो I have to save my data into into वर्ड आ गया, दैट मीन्स एक फंक्शन होगा टू CSV। कौन सा फंक्शन है? टू अंडरस्कोर। हाउ यू विल डू दिस? सी, माई डेटा फ्रेम नेम इज df dot to underscore CSV, df dot to underscore CSV. What I am doing? I am storing my data to CSV name आ रहा है, so that means data frame name is df dot to CSV. Now I have to mention the file path. फाइल का पाथ मेंशन करना। ना फाइल का पाथ कैसे मेंशन करने वाले? सी, फाइल का अगर आपको पाथ मेंशन करना है, ओके, व्हाट यू विल डू, पाथ कुछ भी हो सकता है आपकी ड्राइव का, आपकी सपोज व्हाट आई हैव टू डू, suppose in any D drive or E drive I am going to see, right? How you will do this? See, yes, see, so what I have written, E colon backslash means याद रखना बैकवर्ड स्लैश लगाना, फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, एंड फाइल नेम दैट इज डेमो डॉट सीएसवी। मैंने एक फाइल बना दी डेमो, वाई डॉट सीएसवी बिकॉज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। जैसे इस प्रोग्राम, अच्छा इसके बाद में एक और वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, नाउ प्रिंट यस डेटा फ्रेम एक्सपोर्टेड, डेटा फ्रेम एक्सपोर्ट कर दिया किसमें? सीएसवी फाइल में, एक्सपोर्टेड टू डेमो डॉट सीएसवी। ये एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ ताकि इट इज कंफर्म कि भाई यहाँ तक आपका प्रोग्राम रन हो गया एग्जैक्टली, राइट। जैसे मैं रन करता हूँ मेरे पास आउटपुट आ गया डेटा फ्रेम एक्सपोर्टेड टू डेमो डॉट। अब वो हुआ या नहीं कैसे देखेंगे? ये ई ड्राइव है, यू कैन सी माई ई ड्राइव। ई ड्राइव में एक देखिए एक फाइल बन गई डेमो। आई जस्ट ओपन दिस फाइल ओपन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, शायद कुछ देख पा रहे हैं, जो हमने वहां डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। सी, क्या डेटा फ्रेम था? एक्स वाई जेड आर द कॉलम्स एंड ए एंड बी आर द रोज। देखिए वो जो आपने डेटा वहां पे स्टोर किया था, दैट डेटा हैज बीन स्टोर्ड इन दिस सीएसवी फाइल। आपने अपना डेटा जो डेटा फ्रेम का था उसको सीएसवी फाइल में स्टोर कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हम? टू अंडरस्कोर सीएसवी। क्यों किया टी? बिकॉज हम जो हमारा डेटा है वो स्टोर कर रहे हैं सीएसवी फाइल में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन रहता है, देखिए प्लीज, जब आप टू सीएसवी कर रहे हैं तो वहां एक ऑप्शन होता है हेडर इक्वल्स टू फॉल्स, हेडर इक्वल्स टू फॉल्स। देयर आर टू ऑप्शन, यस, सी, हेडर इक्वल्स टू फॉल्स। व्हाट विल बी डन? सी, ये डेटा एक्सपोर्ट हो गया। अभी हम वापस से उसी फाइल को ओपन करेंगे, वी आर एबल टू सी कि एक्चुअली क्या होने वाला। सी, आप देखिए हेडर इक्वल्स टू फॉल्स से क्या हुआ, आपका जो कॉलम था एक्स वाई जेड वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ। डेटा तो एक्सपोर्ट हो गया बट आपका जो कॉलम है वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड हेडर इक्वल्स टू फॉल्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा,
नेक्स्ट एक तो हेडर हो गया, एक आपका हो जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, रोज के जो इंडेक्सेस हैं वो भी अगर आपको एक्सपोर्ट नहीं करने तो आप लिख सकते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। अगेन प्रोग्राम रन किया, अगेन वी विल गो थ्रू दिस। सी जैसे आप इसको जाके देखेंगे तो क्या होने वाला है, सी टेबल आई है ना, तो रो इंडेक्स है, नहीं आपका क्या कॉलम इंडेक्स। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू एक्सपोर्ट डेटा विथ हेडर और फुटर यू कैन डू दिस, राइट। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल, राइट। यस, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका कमेंट कर देते हैं, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये सारा प्रोग्राम और नोट्स मैं अपने लिंक्स में शेयर कर देता हूँ, तो जस्ट गो थ्रू इट सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, राइट। सॉलिडली 12th क्लास के सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ थ्रू आउट द ईयर। आइदर 1 और 2 डेज के गैप में मैं आपको हमेशा एक वीडियो देता रहूंगा। थोड़ा गैप इसलिए रखते हैं सो यू आर एबल टू रिकॉल ऑल द थिंग्स। एंड अगेन आई एम सेइंग, आपने अगर पहले प्रीवियस वीडियोस यू हैव नॉट वॉच्ड, जस्ट गो टू प्रीवियस वीडियो देन कम टू दिस, surely you are able to understand what I am going to do this, right? Again I am running this program. See, this is my demo file. See, this is the program. Okay, now अब हम लोग क्या करने वाले, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। सपोज इट इज 11, इट इज 22, इट इज 33, okay, it is 45, it is 55 and it is 66। मैंने इस फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए, राइट। दिस इज माय एक्सटर्नल फाइल, मैंने वहां से फाइल लिया था, फाइल लेके सेव किया, मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस कर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, अभी मैं इस फाइल को रीड करने वाला हूं। आई एम अगेन सेइंग आई एम गोइंग टू रीड दिस फाइल। कैसे रीड करने वाले हैं, सी प्रोग्राम हमारा रन हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसा करता हूं, यस सी, इसको फिलहाल इन सभी को मैं कमेंट बॉक्स में कर देता हूं। कमेंट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, इस सभी को हम लोग कमेंट कर, ठीक है। अभी मुझे डेटा क्या करना, रीड करना है। क्या करना है, डेटा रीड। हाउ टू रीड द डेटा, सी डेटा जो राइट करना था तो टू CSV, रीड करना तो रीड CSV, बट वहां DF था, तो अभी आप क्या करना है, डेटा रीड करना है। तो पहले एक वेरिएबल बना DF जहां पे डेटा रीफ होगा, दैट इज योर डेटा फ्रेम। नाउ यू हैव टू राइट yes pd dot read underscore CSV। pd means pandas, वहां df.2CSV था, यहाँ pd.read.csv है। डिफरेंस है, प्लीज सी दिस, राइट। क्योंकि हम अभी डेटा फ्रेम में रीड करने वाले हैं, इसलिए df को हमने राइट साइड में ले लिया, वहां df को ही राइट करना था, इसलिए df.2CSV, राइट। अगेन फाइल पाथ क्या था, e कॉलन बैकस्लैश, ओके, demo.csv, यही हमारी फाइल थी, demo.csv, ओके, ठीक है, हमने डेटा ले लिया। नाउ वी हैव टू प्रिंट इट, ठीक है, हम इसको प्रिंट करते हैं। सी व्हाट विल बी डन, जैसे हम इसे प्रिंट करने वाले हैं, सी डेटा मेरा आ चुका है, यू कैन सी डेटा हमारा आ चुका है। कुछ चेंजेस हैं, क्या है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सी XYZ 11 22 23, यही हमने डेटा दिया था। ए और बी हमारे इंडेक्सेस आ चुके हैं, ए और बी क्या आ चुके हैं, हमारे यहाँ पे इंडेक्सेस आ चुके हैं। नाउ यू कैन सी ए और बी को भी इसने एक कॉलम बना दिया है। ए और बी क्या हो गया आपका कॉलम, इसको भी हम लोग देखते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट रीड। पहले आपने क्या किया था, डेटा को राइट किया था, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं, राइट। एक्जेक्टली कौन सा फंक्शन यूज किया, रीड अंडरस्कोर CSV। यस, नाउ यू कैन सी, जैसा हमने भी डिस्कस किया कि बेसिकली हमारा डेटा तो आ गया है, बट आप देखिए ए बी ये कॉलम्स आ चुके हैं, राइट। तो इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है हेडर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हेडर इक्वल्स टू नन। तो हेडर इक्वल्स टू नन बेसिकली क्या करता है, जो आपका हेडर वहां से है उसको हटा देगा। दैट मीन्स रो और कॉलम के जो इंडेक्सेस थे वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा, रो और कॉलम का इंडेक्स 0 1 2 3 स्टार्ट हो जाएंगे, यू कैन सी। नाउ इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि XYZ भी एक कॉलम हो गया, बट इसको मुझे कॉलम क्रिएट नहीं करना था, इट इज नॉट अ डेटा, ये हमारा डेटा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडर के साथ में एक और ऑप्शन होता है कि सपोज आप इसका हेडर यूज नहीं करना चाहते हैं, आप इसका हेडर यूज आप खुद के कॉलम्स यूज करना चाहते हैं, व्हाट यू विल डू, हेडर इक्वल्स टू नन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम एज इट इज रखते हैं, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसको कहाँ यूज किया था हमने। कमेंट कर देते हैं फिलहाल हम इसको, राइट। हाँ यस, व्हाट यू विल डू, हेडर की जगह एक और प्रॉपर्टी होता है बेटा, नेम्स इक्वल्स टू, नाउ यू हैव टू मेंशन द कॉलम नेम्स जो भी आपको चाहिए। सपोज आई वांट 3 कॉलम नेम, दैट इज P Q and R, exactly what it will be done, you can see
सी अब जो आपके कॉलम नेम है दैट इज पी क्यू एन आर, इंपॉर्टेंट है पी क्यू आर इज द कॉलम नेम। अगेन एक्स वाई जेड अभी भी फर्स्ट रो आ रहा है, जबकि मेरा जो डेटा फ्रेम था उसमें जो फर्स्ट रो था दैट इज 11, तो फर्स्ट रो जो अभी मेरे पास आ रहा है आई हैव टू स्किप दिस। सी वापस सुनिएगा, पी क्यू आर द कॉलम हेडर्स, ठीक है, आई वांट टू स्किप द फर्स्ट रो दैट इज एक्स वाई जेड, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होता है सी, व्हाट यू विल डू इज skip rows, that is skip rows, skip rows। कौन सा रो स्किप करना मुझे, 1 नंबर, राइट। जैसे हम इसे रन करने वाले यू कैन सी दिस, सी अभी हमारे पास एग्जैक्टली वही आ गया है जिसको हम यूज करने वाले थे, ए और बी आर द कॉलम्स। तो जब भी आप रोज को इंसर्ट करने वाले हैं एक नेम दे दें, जो भी आपको कॉलम्स का नेम देना है, एंड स्किप रोज इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट रो आपका जो वहां हेडर है वो स्किप हो जाएगा एंड यू विल गेट द डेटा फ्रेम एज इट इज। एज इट इज आपने डेटा फ्रेम को इंपोर्ट कर लिया, दैट इज योर रीड सीएसवी। इसी में एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज एन रोज। What is the use of n rows? N rows means number of rows. Suppose मेरे पास n rows, yes. Now what I want, n rows equals to 1. n rows equals to 1 से क्या होगा, only first row आपकी आएगी। अभी पहले क्या था, सारी रोज है। सपोज मैं डेटा आई हैड माय डेटा फ्रेम है 50 रोज और मुझे 10 ही रोज, आई नीड 10 रोज ओनली, तो आई विल राइट n rows equals to 10। so this is how you can read the data from CSV file। तो दो फंक्शंस हो गए, there are two functions, to underscore CSV and read underscore C। to underscore CSV मीन्स जो भी मेरा डेटा फ्रेम है उसका डेटा मैं कहां सेव करने वाला हूं, CSV फाइल्स में, एंड read CSV मीन्स whatever be the data in my CSV file I am getting it back to the my data frame exactly। I hope you are able to understand this most important topic for projects and for 12th IP also, right? So please go through this video properly। See, so pd.read CSV, what I have mentioned, first is your file path, header equals to none means you don't want to further, names means column name, new column name, right, in data frame, skip rows means number of rows you want to skip, 1 2 3 whatever number of rows you want to cut, right। next is your export data, डेटा एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, df.tocsv फाइल पाथ हेडर और इंडेक्स, हेडर इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स करेंगे, ट्रू और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, फॉल्स करते हैं आपका हेडर वहां पे स्टोर नहीं होगा, फॉल्स कर देंगे इंडेक्स को तो इंडेक्स हेडर फॉल्स नहीं होगा, राइट। तो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। So what we have discussed today, just there is a brief, yes, we have discussed about rename column name or row name, dictionary का यूज किया हमने, then head and tail functions, then boolean indexing, data frame attribute, then import or export data from CSV file। it is the most important topic, right। मैंने आपको practically I have explained everything, ये सारे screenshots programs I will mention in my notes only, in my description box you will get the notes। I hope you will like this video, and if you want the if you want further videos regarding pandas data frame or pandas in the future also, just subscribe my channel IT Concepts। thank you so much students, next we will next video will I will share soon, thank you।